میں جو کچھ کر رہے ہو کل قیامت کے روز اللہ کی طرف سے تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور آج ہم اپنے بیٹے سے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ایک تو یہ باپ ہے کہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں بیٹا سے، بیٹا جا ایک پیکٹ بیڑی کی پیکٹ لے کر آ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جا ایک پیکٹ سگریٹ لے کے آ، جا ایک پیکٹ گل لے کر آ، جا ایک جردہ دے کے پان لے کے آ۔ آج ہم اپنے بیٹے کو ادھر بھیج رہے ہیں، لیکن آج کیا یہ باپ کی ذمہ داری؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے دوں۔ ایک باپ ہے، ہر دن اپنے بیٹا سے کہتا ہے کہ جا بیڑی جو ہے ایک پیکٹ بیڑی لے کے آ۔ وہ ایک دن گیا، معصوم ہے، چھوٹا ہے ابھی، بیڑی پینے سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے اس کو ابھی علم ہی نہیں ہے، ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بس آپ کی ذمہ داری میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جا ایک پیکٹ بیڑی لے کے آ۔ ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، 4 دن گیا، مسلسل جب وہ جاتا رہا تو ایک دن ان کے خیال آیا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آخر یہ چیز کیا ہے، یہ بیڑی پینے سے کیا ہوتا ہے، چلو میں بھی ایک پی کر دیکھتا ہوں۔ تو بیٹا نے ایک بیڑی نکالی اور بیڑی نکالنے کے بعد اس نے پی تو اس کو بڑا مزہ آیا۔ باپ پہلے سے تو حرام خور تھا، بیٹا بھی باپ کو دیکھ دیکھ کر حرام خور بن گیا۔ تو ایک بیٹا اگر بیڑی پیتا ہے، ایک بیٹا اگر آج، یہ تو مثال دے رہا ہوں، اگر غلط کام کر رہا ہے، اگر آج ایک بیٹا بے نمازی ہے تو کیوں؟ باپ کی وجہ سے، کیونکہ باپ وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ باپ بننا کمال نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بچہ پیدا کرنے کے بعد ایک اچھا باپ بن کر دکھائیے سماج کے اندر، حضرت لقمان علیہ السلام کی جیسا۔ ایک صاحب تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تنویر صاحب میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں تو بہار میں بہت کم آتا جاتا ہوں، آنا جانا بہت کم لگا رہتا ہے، کیونکہ میں مالدہ کی سرزمین پر رہتا ہوں لگ بھگ آج سے 9 سال سے۔ میرا جتنا بھی پروگرام ہے سارا کے سارا، آپ جائیے خبر لیجئے، بنگال سے جو مقرر آئی ان سے پوچھئے، میرا جتنا بھی پروگرام ہے نا، مدناپور، اڑیسہ، ہگلی، دکن 24 پرگنہ، اتر دناجپور، دکن دناجپور، مالدہ، کلیاچک، انہی سب علاقوں میں پروگرام ہوتا رہتا ہے، اور ادھر کے لوگ بہت زیادہ بیڑی پیتے ہیں۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا کہ تنویر صاحب میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا صاحب پوچھو، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتا صاحب کیا اسلام کے اندر ہر چیز کرنے کی دعا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے کہا جیسے؟ تو اس نے کہا کیا چاول کھانے کی دعا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ پھر وہ بول رہا ہے، بنگلہ میں بول رہا ہے کہ مولانا بھات کھاور کی دعا আছে؟ ہم بولলাম আছে। বলছে যে দুধ খাওয়ার দোয়া আছে? আমি বলছি আছে। বলছে মৌলানা বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? দেখ বোকা কোথায় কার, আরে বিড়ি তো হারাম, বিড়ি খাওয়ার আবার কোনো দোয়া আছে নাকি? বলছে না মৌলানা বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে। বললাম বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? তুই কি করে জানলি? বিড়ি খাওয়াতে ইসলামে নিষেধ, বিড়ি খাওয়াতে ইসলামে হারাম, এটা কি করে পসিবল হতে পারে? বলছে না মৌলানা তাহলে আপনি জানেননি, আপনি একটু ভালো করে পড়াশোনা করেন, বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে। আমি তখন ওকে বলছি আচ্ছা বল তো বিড়ি খাওয়ার দোয়া কি? বলছে আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা বেরি টানা। বলছে এটা হচ্ছে বিড়ি খাওয়ার দোয়া। देखिए बीड़ी तो पीते गलत काम कर रहा, इस्लाम को लेकर मजाक भी कर रहे। तो मैं जो बता रहा था मेरे भाइयों कि अगर बाप बनना चाहते हैं ना तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जैसा बाप बनने की आप कोशिश कीजिए। आपके बच्चे के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है आप वो जिम्मेदारी अदा करें, आप वो जिम्मेदारी निभाएं। यकीनन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो आपका लड़का, आपका बच्चा गलत कामों से बचेगा, आपका लड़का बुराई से बचेगा और आपका लड़का हरामखोर बनने से भी बच जाएगा। तो आइए क्या बता रहा था, अल्लाह का डर। मेरे भाइयों जरूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अल्लाह का डर, एक इंसान को अल्लाह का डर किस तरह गुनाहों से बचाता है, आइए एक वाकया मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वाकया जो मैं बताऊंगा ये वाकया आपको कहाँ मिलेगा? एक किताब है उसदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा, उस किताब के अंदर ये वाकया आप देख सकते हैं कि एक इंसान को अल्लाह का डर, एक नौजवान को अल्लाह का डर किस तरह गुनाहों से बचा लेता है। कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रास्ते से जा रहे हैं, सामने में एक बहुत बड़ा जंगल है, वो जंगल में इंटर करते हैं, जंगल में घुसते हैं तो उनकी नज़र एक बकरी के चरवाहा पर पड़ती है और देख रहे हैं कि वो नौजवान, उसदुल गाबा का वाकया है, देख रहे हैं कि एक नौजवान के पास बहुत सारी बकरियां हैं और वो बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके पास जाते हैं और उसकी आजमाइश के खातिर उनसे कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, ऐ नौजवान, बीवी शातन, क्या मुझे एक बकरी फरोख्त करोगे? क्या तुम एक बकरी मुझे बेचोगे?
वो नौजवान कहता है, ए अजनबी शख्स, मैं आपको जानता तक नहीं, ए अजनबी, ए इंसान, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आप बिल्कुल मेरे पास, मेरे नजदीक अजनबी, अननोन पर्सन है, मैं आपको नहीं जानता। आप ये कह रहे हो कि इन बकरियों में से एक बकरी मैं आपको बेच दूं, एक बकरी मैं आपको फरोख्त कर दूं, तो सुनो, अल्लाह की कसम, मेरे सामने, मेरे पास जितनी भी बकरियां हैं, इन बकरियों में से मैं एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं, एक बकरी का भी मैं मालिक नहीं हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसका इम्तिहान लेने के लिए, उसकी आजमाइश के लिए कहता है, ऐ नौजवान, कोई बात नहीं, मैं मुसाफिर हूँ और मेरे अलावा और तेरे अलावा यहाँ पर कोई दूसरा इंसान भी मौजूद नहीं है, यानी कोई तीसरा यहाँ पर मौजूद नहीं है। चारों तरफ सिर्फ दरख्त ही दरख्त हैं, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। तुम एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो, एक बकरी मुझे भेज दो, अल्लाह की कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और हाँ, जब तुम घर में जाओगे और तुम्हारा मालिक तुमसे सवाल करेगा, तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा, तुम्हारा मालिक तुमसे आस्क करेगा कि बताओ मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ चली गई, मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ खो गई, तो तुम अपने मालिक से जवाब दे देना कि आज जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, आज जंगल के अंदर चीड़ फाड़ खाने वाला एक दरिंदा आया था जो एक बकरी निगल कर चला गया या एक बकरी खाकर चला गया। ये उनको जुगाड़ दे रहे कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के। मालिक से झूठ बोल देना, मालिक से कह देना कि जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, एक बकरी खाकर चला गया। देखिए अल्लाह का डर एक इंसान को किस तरह गुनाहों से बचाता है, किस तरह गलत कामों से और चोरी से बचाता है मेरे भाइयों। उसके बाद वो नौजवान कहता है कि चलो ठीक है, मैं मान लिया, चलो मैं मान लिया, आपकी बात सुनकर मैं अपने मालिक से झूठ बोल दिया, मैं अपने मालिक से झूठ कह दिया कि आज जंगल में की भेड़िया आया था और वो भेड़िया एक बकरी खाकर चला गया, एक बकरी निगल कर चला गया। हो सकता है कि मेरा मालिक मेरी बातों का एतबार कर ले, मेरी बातों का भरोसा कर ले, मेरी बातों का यकीन कर ले, बिलीव कर ले। मैं तो दुनिया में अपने मालिक की नजर से बच जाऊंगा, मैं तो दुनिया में अपने मालिक के हाथों से बच जाऊंगा, लेकिन जो मेरा मालिक का भी मालिक है, जो मेरा रब है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा राज़िक है, कल क़यामत के दिन मैं उसकी अदालत में जब मेरी पेशी होगी, उसकी अदालत में जब मुझे खड़ा किया जाएगा, बताओ उस दिन मैं कैसे बचूंगा, उस दिन मैं कैसे बचूंगा। तो ये होता है अल्लाह का डर। इस चीज को हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है मेरे भाइयों, इस एहसास को हमारे अंदर पैदा करने की जरूरत है मेरे भाइयों। अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो यकीनन आपकी दुनिया भी बदल जाएंगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएंगी और आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जरूरी है अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करने की। अल्लाह का डर है, अल्लाह का डर ही वो चीज है जो इंसान को गुनाहों से बचा सकती है मेरे भाइयों। इसलिए तो बार बार मैं आपको ये पैगाम और मैसेज दे रहा हूं कि आप अपने अंदर बस अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। और वो एक वाकया देखिए, क्या माँ बेटी से कहती है कि बेटी दूध में पानी मिला ले। रात के अंधेरों में माँ, एक माँ देखिए किस तरह अल्लाह का डर उसको गुनाहों से बचा रहा है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला ले। अगर आप में से कोई चाय बेचने वाले हैं तो आप भी सुने, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा 1 किलो दूध में 17 किलो पानी की मिलावट करते हैं। 1 किलो दूध में 17 किलो पानी मिलाते हैं और लोगों से कहते हैं कि देखो मेरा दूध जो है ना ये ओरिजिनल दूध है, मेरी जो चाय है ना ये ओरिजिनल दूध की चानी है, एक बूंद भी इसमें पानी की मिलावट नहीं है। आज कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। आप लोगों का हुआ, एक बार कर दीजिए ना जो करना है। बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? छोड़ जाता है। जो बोल रहा था कि एक माँ, चल लगाइए, लात छोड़ जाता है।
है